ہوا ہے حی علی الفلاح کا، اور 8 سوالات کریں گے. یہ ٹیمز ہماری بڑی خوش قسمت ہیں جو انعامات جیت کے جائیں گی، اور جو سوالات ہوں گے وہ کریں گے طارق عزیز صاحب. جی سوالات کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار ہیں؟ جی آپ رحمت ہیں، آپ نعمت ہیں، آپ برکت ہیں. سیدھے سیدھے سوال کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ الٹے الٹے جواب آتے ہیں. سوال بڑے سیدھے سیدھے ہیں. جو پہلے بزر بجا دے گا. شروع کروں؟ بسم اللہ کرتے ہیں. میرا پہلا سوال آپ لوگ بھی دھیان سے سنیے، یہ زندگی میں کبھی کام آ سکتی ہیں یہ باتیں، یہ سوال و جواب اسی لیے پوچھے جاتے ہیں. جی میرا پہلا سوال ہے کہ خشکی کی تلاش میں کبوتر کس نبی علیہ السلام نے بھیجا؟ آپشنز دکھائے جی. آپشن ہیں، پہلے کو بزر تو بجا لے. اچھا سوچ رہے ہیں یہ آپشن جی. آپشنز بڑھیے. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. ان چاروں میں وہ نام پوشیدہ ہے بہت جس نبی نے کبوتر بھیجا تھا خشکی کی تلاش میں. خشکی کی نعمت. حضرت نوح علیہ السلام. جی حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. 10 پوائنٹس نعمت کے. یہ کشتی میں جب وہ 40 اور دنیا بھر کے پرندے اور وہ انسان جمع کر کے حضرت نوح علیہ السلام اپنی، اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دنیا میں کشتی بنائی، اور خدا ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہا کہ کشتی بناؤ کشتی بناؤ. طوفان آنے والا تھا. وہ تو خیر نبی جانے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے. آپ نے صحیح جواب دیا نعمت نے. جی ہاں. ان کے 10 نمبر ہیں جی آپ کے. اور ایک بات سن لیں، شوق میں باں کر دیں ٹاں ٹاں اور جواب غلط دے دیں تو 5 نمبر کٹ جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 10 نمبر ہیں نعمت کے جی. آگے چلتے جی. لائیے. میرا دوسرا سوال ہے، سوال سنجیدہ ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیٹی کا انتقال غزوہ بدر والے دن ہوا؟ حضرت صفیہ. جی آپشن سن لیجئے. 4 نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے ایک ہے رقیہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت رقیہ. اب بتائیے حضرت رقیہ. پہلے کس نے بزر بجایا؟ نعمت نے ہی دبایا ہے اور انہی کا ویٹ ہم کریں گے جواب کا. حضرت رقیہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. 20 نمبر ہو گئے آپ کے. جی آگے چلتے ہیں. آپ دونوں بڑی اداس کھڑی ہیں، ہمت کریں، بزر بجائیں اور 5 نمبر کٹوا ہی لیں. جب جیب میں کچھ نہیں تو میں کیا لوں گا آپ سے. سوال یہ ہے کہ کس بدبخت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر حملہ کیا تھا؟ 4 نام میرے ذہن میں ہیں، تاریخ بتاتی ہے. عبداللہ بن سبا جسے ابن سبا بھی کہتے ہیں، ابن ملجم، ابو لولو فیروز اور عتبہ. بہت آسان، ابھی شروع میں ذکر بھی کیا ہم نے اور وہ نام لیا بھی علامہ صاحب نے. بہت ہی رحمت نے دبایا ہے. It's C, option 3. نام لیجئے. ابن الملجم. رائے کی تعلیم عبدالرحمن ابن ملجم. ویسے ٹھیک تھی. جواب درست ہے. 10 نمبر آپ کے اور ہوئے جی. آپ کے ہوئے رحمت 10 نمبر. جی لائیے. میرا چوتھا سوال ہے. 7 سوال ہیں ٹوٹل. آپ کہیں انتظار میں رہیں کہ بڑے سوال ابھی تو وقت پڑا ہے.
तवाफ काबा के एक चक्कर को क्या कहते हैं? ऑप्शंस ये हैं, हराम, मीकात, मवाकियत, शौक। बरकत ने दबाया जी बजर। मीकात। हाँ, बरकत वालों ने समझा कि बरकत नाम रख लिया तो उससे बरकत ही होगी। जवाब आपका गलत है। जेब में आपके कौड़ी नहीं थी, घर में था क्या कि तेरा गम जिसे गारत करता। 5 रुपए के उधार आप पर हुआ थी। और आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं, बजर नहीं दबाएंगे और ना इसके पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर शौकिया जवाब देना चाहते हैं तो बताइए। गलत। फोर्ट, आई गेस फोर्ट। तो फिर इस जी सवाल जी जवाब दीजिए ना, ये वाला। हाँ, जवाब है शौक। शौक। शीन वाओ तोए। एक चक्कर को, वो जो हरम के आप चक्कर लगाते हैं उनको, जी हाँ, तवाफ काबा भी जिसे कहते हैं, वो सारा। और इस पर मैं आपको एक छोटी सी बात ये सुना दूं कि मैं दुनिया के उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूं जो खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ। वहां उसने नमाज चारों तरफ, जब आप काबा के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो गोया समते काबा खत्म हो जाती है, आप खुद काबा हो जाते हैं। तो फिर 4 नफल इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर नफल पढ़ के तो इंसान दुआ करता है। और अल्लाह जाने उस वक्त क्या कैफियत होती है, मैं नहीं जानता। बहरहाल चलते हैं आगे जी। जी रहमत, नेमत, बरकत, हिम्मत करें। मेरा आपसे 5वां सवाल है, सानहा ज़रबत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो किस सने हिजरी में हुआ? ऑप्शंस हैं, ये है 45 हिजरी, 42 हिजरी, 41 हिजरी या 40 हिजरी। बजर किसने बजाया? किसी ने नहीं। अच्छा, अभी तो गिनती गिन रहे हैं। टाइम ऑफ हो रहा है, टाइम जा रहा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जब हमें आगे जाना है। मैं 5 गिनता हूं। 1, 2, और ये भी बता दूं, उतनी देर आप सोच लें कि मेरे अपने हाथ से खाना काबा के अंदर पत्थर लगा हुआ है। ये 1996 की बात है, जब काबा की तज़ीन 9 हो रही थी। तो उस वक्त मैं बाहर निकलने लगा तो एक ने कहा कि तारक साहब ये पत्थर उठा के जरा यहां रख दें। वो सीढ़ी पे बैठा मरम्मत कर रहा था, मैंने पत्थर रख दिया तो ये जो हजर अस्वद है, इससे इधर दरवाजे की तरफ कोई 1.5 गज के फासले पर खाना काबा के अंदर सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या किस्मत पाई है, माशाल्लाह जी। अब तो जो खत्म हो गया, फिर टाइम खत्म हो चुका है। सही जवाब है 40 हिजरी, सन 40। किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिले। ये आगे चलते हैं जी, आगे क्या है? रहमत, नेमत और बरकत। बरकत तो अभी तक अल्लाह की बरकत ही है, बाकी तो अल्लाह जाने। 5 रुपए के आप मकरूज हैं। सवाल यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किन जलीलुल कद्र सहाबी ने पढ़ाई थी? जी, और ऑप्शंस हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन, और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन। नेमत, हजरत रहमत ने दबाया, एक मिनट, रहमत ने पहले दबाया, हजरत साद बिन अबी रहमत ने पहले दबाया, रहमत ने पहले दबाया, रहमत साद बिन अबी वकास, साद बिन अबी वकास। मैं आपको सोचने के लिए सिर्फ 2 सेकंड देता हूं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? हजरत
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. -5 ہوئے ان کے. آپ کے 5, آپ بھی 5 ادھار میں آ گئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی تھی. جی ہاں, آگے لاسٹ کوشچن ہے ہمارے سیگمنٹ کا. 7واں سوال آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے 5 دینے ہیں ہمارے. آپ کے پاس کچھ ہے؟ کتنے؟ ہمارے پاس 20 ہے. 20 ہیں. 20 مارکس. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. 20 ہے. آپ کے پاس 5 marks, I guess. 5 marks. -5. ان کے پاس 5 ہیں یا -5 ہیں؟ -5 ہیں نہیں, 5 ہیں ان کے پاس. 5 ہیں. جی ہاں. اچھا چلیے جی, آخری سوال بسم اللہ کرتے ہیں. کون سی ام المومنین سب سے اعلیٰ خطیبہ تھی؟ میں 4 نام گن دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. برکت نے آخرکار دبا دیا ہے بزر. حضرت عائشہ 5 برابر ہوئے, نہ کچھ لینا نہ دینا. 10 پوائنٹس میرے ساتھ 5 اوپر آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اور 10 آگے ان کے پاس. 5 کاٹ کے 5 دے آپ دیے, کے پاس لیکن رہ سر گئے. ہم نے قرض رکھا نہیں, دے دیا. قرض دے دیا. بہت اچھا کام کیا آپ نے. اگلا راؤنڈ جو ہمارا ہے, اس کو اس سے پہلے جانے سے پہلے میں یہ بتاتا چاہوں کہ برکت کے ہمارے پاس 5 پوائنٹس, نعمت کے ہیں 20 پوائنٹس, اور رحمت کے ہیں 5 پوائنٹس. تالیاں بجائیے بہت سی. کمپلیمنٹری گفٹس جو ان کے ساتھ جائیں گے, آپ جیتے نہ جیتے, گاٹ ٹیکسٹائل, ایڈن رو, اتحاد بانڈ, کوکا کولا, مازا, ANZ, المیرا, یہ سب گفٹس ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. جیتنے والی ٹیم کو کیا ملے گا وہ ہم اناؤنس کریں گے کچھ دیر بعد. سیکنڈ راؤنڈ ہمارا ہے, اور سیکنڈ راؤنڈ یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ ویژول راؤنڈ ہے, اور آپ کو ویژولی دکھایا جائے گا کچھ, اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن اس میں بزر راؤنڈ نہیں ہے, اس میں انڈیویجولی ہر ٹیم سے 2 سوال کریں گے. برکت, نعمت اور رحمت. تو دیکھیں, شروع کریں. اب رحمت سے شروع کریں یا برکت سے, آپ بتائیے. رحمت سے شروع کریں. ٹھیک ہے جی, رحمت سے شروع کرتے ہیں, اور اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کیا ہے. دکھائیے جی اسکرین پر. یہ سامنے جی یہ سامنے دیکھیے, اور آپ ان کو اجازت ہے نا مڑ کے؟ جی یہ وہ دیکھ رہے ہیں سامنے سر. اچھا, یہ وہ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, وہ اندھا میں ہی ہوں پھر. اچھا سر سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ ریڈیو کس سائنسدان نے ایجاد کیا؟ بہت آسان. یہ ریڈیو کی تصویر بزر آپ تو دیکھ نہیں ہے, لیکن نہیں, رحمت سے سوال کر رہے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز. ریڈیو کس سائنسدان نے ایجاد کیا؟ مارکونی. بالکل صحیح, مارکونی. جی دکھائیے اگلا ویژول اسکرین پر کیا ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں, اس سیارے کا نام کیا ہے؟ ہاں رحمت بتائیے, ٹائم اپ ہے. سوال رحمت سے ہو رہا ہے, 2 سوال انڈیویجولی ہو رہے ہیں. رحمت بولیے, آپ کے پاس کچھ سیکنڈ ہیں. اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے کیا؟ نیگیٹو نہیں ہے اس میں. مارس. ایک نام اور لے لیجئے, چلیں آپ کو چانس دیتے ہیں. سیارے کا نام وینس. ابھی بھی غلط ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب کچھ نہیں کرنا, آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کا بس جواب آپ بتا دیجئے کیا ہے. یہ ہے جی جوپیٹر, مشتری. جی اب باری ہے نعمت کی, اور نعمت کے لیے اچھا نمبر ان کے کتنے ہو گئے؟ جی ابھی ہم اینڈ میں سب کے نمبر اناؤنس کریں, لیکن ان کا ایک جواب صحیح ہوا, ایک غلط ہے. تو مائنس نہیں ہوا. 20 اور 10. سر بعد میں ہم ٹوٹل کاؤنٹنگ بتائیں گے ان کو. ہمارے کوئی لکھ رہا ہے ساتھ جی جی, اچھا ہمارے کمپیوٹر میں سب کیلکولیٹ ہو رہا ہے. نعمت تیار, تصویر آ جائے. تصویر آ جائے. جی بہت آسان. اس آلے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹوسکوپ. کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹوسکوپ. نہیں صحیح بولیے, کیا بول رہے ہیں؟ پروننسیشن نہیں آ رہی صحیح. پروننسیشن ہی تو بتانی ہے. مائک میں بولیے. ٹیسٹوسکوپ. اسٹیسٹوسکوپ نہیں کہتے اس کو, اسٹیسٹوسکوپ.
بتائیے سوچیے. Stethoscope. ٹیسکو نہیں, Stethoscope. کوپ وہ بہرحال ٹیٹکو اتنی کیا رعایت کہتے ہیں؟ دے دیں کیونکہ وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ ڈاکٹروں کے پاس جی. ہوتا ہے, مستریوں کے پاس نہیں ہوتا جو سائیکل کو پنکچر لگا. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. چلیے اسٹیٹوکوپ نہیں کہتے اس کو, اسٹیٹوسکوپ کہا جاتا ہے اس کو, اسٹیٹوسکوپ کہتے ہیں نارملی. اور سکھ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پاخ میچو. پاخ سے مراد آگ سی اور میچو ناپنا. تو حرارت کتنی ہے وہ ڈاکٹر کانوں میں لگا کے, یا دوران خون بھی اس سے چیک کیا جاتا ہے, یا فیشن کے طور پر بھی لوگ ڈال دیتے ہیں کہ میں سفید کوٹ اور سارا. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا کہا جاتا ہے؟ پاخ میچو. کیا پاخ پاخ تو پنجابی میں آگ کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تپش. میچو میچو ناپنا, ناپنے والا. کیا بات ہے. اور یہ خون کا دوران خون بھی ناپنے والا ہے کہ بلڈ پریشر کتنا ہے. کیا بات. میں ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بیوی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں اور اگلا ویژول اسکرین پر دیکھیں گے نعمت کے لیے. اچھا جی, دیکھیں دکھائیے جی ویژول. عربی میں سوال آ گیا ہے کہ عربی میں اس خوبصورت جانور مور کو کیا کہتے ہیں؟ پتھرس. کیا پتھرس. کیا پتھرس. پترس. سوچئے سوچئے, جلدی جلدی, شاباش. ٹائم ختم ہو چکا ہے, چانس ہے, سوچ لیجئے. کسی کو نہیں آتا جواب؟ مرات العروس. مرات العروس یا کسی کتاب کا نام لے دیا آپ عروس نے؟ کچھ کر کے ہے, عروس پڑھا ہوا ہے میرے مائنڈ میں, ذہن میں نہیں. عروس کر کے کچھ ہے مائنڈ میں. یہ عروس کہہ رہی ہے. عروس تو شادی کو کہتے ہیں, یہ عروسی جوڑا. عروس المرات. عروس سوری, عروس البلاد تو کسی شہر کو کہیں گے. عروس کے شہر کی دلہن. پڑھا ہوا ہے, انڈا گھوٹالا بن گیا ذہن میں. پڑھ پڑھ کے نا میرا ذہن جو ہے نا پڑھ پڑھ کے کیا ہوا؟ ذہن میں نا مکسچر بن گیا کچھ. اچھا کچھ عروس کر کے اوس تو کچھ قریب تو ہے ویسے. اوس تقریباً آپ دیکھیے ذرا. نہیں, میں دیکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے اس کا. سوری نہیں سمجھ جی. میں آ رہا. عروس یہ تاؤس. تاؤس. سر قریب تھے نا, طارق صاحب دے دیجئے. دینا تو دے دے. پوائنٹ دے دے, سیکھ لیا آج. آئیے جی, اگلا سوال. برکت, ٹیم برکت ہے اور برکت کے لیے 2 سوالات ہیں ویژول. پہلا ویژول دکھائیے جی برکت کے لیے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ USB اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جی برکت سے ہے. ٹائم آپ ہو گیا. برکت یہ بتائیے. کن الفاظ کا مخفف ہے یا ایبریویشن ہے, کن لفظوں کی؟ ہر وقت ہم یوز کرتے ہیں, یوز کیے کبھی USB بولتے ہیں نا, لیکن یہ جاننے کی کوشش کی کیا ہے. اتنی مدد کر دیتا ہوں کہ یو ہے یونیورسل. آگے 2 لفظ ہیں, وہ آپ دونوں کھڑی ہیں, ہمت کریں. برکت آپ کے ساتھ ہے. برکت ایسے نہیں پڑتی, ہمت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے, ورنہ نام رکھ لے بندہ برکت تو وہ برکت ہی ہو اس کے ساتھ. اچھا بی سے تو چلیں, بی سے بتاتے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں روز, بی سے جو ہے سفر کرتے ہیں. ہاں بس ہو گیا. یونیورسل انہوں نے بتایا, بس میں نے بتا دیا. اب بیچ والا جو ہے ایس کا بتا دیجئے. ہاں کوشش کریں, سپلیمنٹری. جلدی ٹائم جا رہا ہے. آپ کیا سپلیمنٹری ایس ہے سڑی ہوئی. ہاں بولے بتائیں. ایس اتنی مدد کی ہے آپ کی. یونیورسل بھی ہو گیا, بس بھی ہو گیا, ایس رہ گیا, اور ایس سڑی ہوئی نہیں. جی صحیح جواب دیں. میں تو مذاق کر رہا ہوں. -5 ہوئے.
-5 ऐसे नहीं होते इसमें, वो डर गई है। 0 हुआ इसका जवाब जी तारिक। यूनिवर्सल सीरियल बस। वैसे ये सड़ी हुई मैंने इसलिए कहा कि कहीं खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो लोग गुस्से में आके पहले बस को ही जला देते हैं। भाई पाकिस्तान की चीज है, चाहे आपकी है या मेरी है, पाकिस्तान की दौलत है, आग लगाना क्या मतलब? बिल्कुल आप सही। पुलिस का इंतजार करें, बिल्कुल सही है ना जी? जी। अगला विजुअल देखते हैं क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का। ये देखिए, बहुत ये आसान। देखें कि एक डंडा सा है, लाल गेंदें पड़ी हैं, 2 काली गेंदें हैं, ये मेज है या पलंग है, पता नहीं क्या है। इसको क्या कहते हैं? स्नोकर। क्या कहते हैं? स्नोकर। स्नोकर। स्नोकर, स्नोकर, स्नोकर। स्नोकर, स्नोकर, स्नोकर या स्नोकर, स्नोकर या स्नोकर, स्नोकर। स्नोकर, स्नोकर, शाबाश शाबाश। स्नोकर जरा का जो जरा अपनी अकल से भी काम ले लें। ये ऐसे नौकर हर घर में होते हैं? नहीं होते ना, तो इसका मतलब है कि कुछ और है। करीब है। ये एहसन ने थोड़ा सा आपको चकरा दिया और आप चक्कर में आ गई। नाम बरकत रखा हुआ है और टके की बरकत पास नहीं है। टेबल स्नोकर। सर सवाल तो पूछ लें आप। जी क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन के लो, उनको अभी तक सारी रात यूसुफ जुलेखा का किस्सा सुनते रहे, सुबह उठ के पूछते हैं जुलेखा मर्द थी या औरत? ये 2 मिनट से बहस कर रहे हैं। ये किस चीज की टेबल है, क्या बोलते टेबल हैं? स्नोकर। स्नोकर सर, वो स्नोकर टेबल कह रही है इसको, लेकिन चलें। आपका तलफ्फुज गलत है, पहुंच आप ठीक गई थी। स्नोकर। स्नूकर, स्नूकर कहते हैं। स्नूकर। स्नूकर, स्नूकर। ये जिसको वो अपना कायदे आजम का ये बड़ा पसंदीदा खेल जी, था, बिल्कुल क्रिकेट सही। और ये स्नूकर, ये उनका टेबल टेनिस भी इसे ना, इसको वो क्या टेबल दिमाग से निकल गया। अच्छा जी, आप ये बताते कि मार्क्स कितने हैं? बरकत, नेमत, रहमत हमारे साथ हैं। बरकत के हैं 10, नेमत के हैं 20 इस राउंड में, और रहमत के हैं 10। इनके लिए तालियां बजाइए बहुत सी तालियां। थर्ड राउंड की तरफ चलेंगे, लेकिन थर्ड राउंड शुरू करने से पहले 60 सेकंड्स का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वापस आएंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूर रमजान विद तारिक अजीज। अब सख्त तरीन दाग निकालने के लिए फ्राइड 1 किलो का बैग 30 रुपए और आधा किलो का बैग 15 रुपए की बचत के साथ। तो फिर फ्राइड से अब कोई दाग बच के दिखाए। ये लो आ गया सामान। अब सारे काम दोस्त से ही करवाओगी। बस थोड़ा सा ऑयल गरम कर दो, मेहमान आते ही होंगे। आम बाहर से धुली इस कढ़ाई में मैंने अच्छी तरह धोई है। चेक करें, थोड़ा गर्म पानी डालकर चिकनाई और साथ में नजर ना आने वाले जरासीम भी। प्रॉब्लम इस आम बार में है। ये लो लेमन मैक्स बार, जो ना सिर्फ लीमू की ताकत से कड़ी चिकनाई हटाए बल्कि जरासीम का भी मुकम्मल सफाया करे, यानी नो ग्रीस एंड नो जर्म्स। चिकनाई काटने में पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स बार। जी हाँ, वापस आ गए हैं हम और रहमत, नेमत, बरकत टीम्स हमारे साथ हैं। सवालात हैं तारिक अजीज के हाथों में। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस राउंड का थोड़ा सा बता दीजिए बैकग्राउंड के। इसमें 4 इशारे स्क्रीन पर होंगे सामने। उन 4 इशारों से आपको क्या समझ में आता है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। जवाब, आपका जो जवाब है हमारे जवाब के करीब तर होना चाहिए। ठीक है जी, इज एवरीथिंग क्लियर? और एक चीज बता दूं, ये बजर राउंड है। बजर बजाएंगे 10 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब देने वाले को, -5 इसमें होंगे गलत जवाब देने वाले को।
क्लियर? तैयार हैं जी? लाइए जी क्या दिखाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि 4 चीजें हैं, माल, फर्ज, साल, मुस्तहिक। रहमत ने दबाया है पहले, ज़कात। इन्होंने कहा ज़कात। बिल्कुल सही। ज़कात 2.5% के बारे में उलमा कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 2.5 रुपए की ज़कात आप पर वाजिब है। बाकी उसकी तरतीब और तफसील वो लंबी बातें हैं, वो मैं शायद आपसे ना कर सकूं। और जब आप बजर दबाएं तो इंतजार कीजिए कि हम बताएंगे आपको कि बजर पहले किसने दबाया, ठीक है जी? और -5 होंगे अगर गलत जवाब हुआ तो। आगे चलें जी। दूसरा सवाल देखिए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देखें। पहला है जिहाद, फिर है मुनकरीन, मुर्तदीन और सहाबी। रहमत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कैसे पहचाना आपने? क्योंकि उन्होंने ज़कात ना देने वालों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। बहुत अच्छा मुस्तैदी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने जिहाद, उसका जवाब चारों इशारों से यही बनता था। मैं अन्हो कह गया हूं, कहना था जी। जी जी देखिए जी स्क्रीन पर अगले नमाज, 4 इशारे। जरूरत, बारिश, इबादत, ये 4 इशारे हैं जी। एक मिनट। नेमत और बरकत ने तकरीबन करीब दबाया, नेमत ने पहले दबाया है जी। नमाज इस्तिस्का, जो बारिश के लिए नमाज अदा की जाती है। नमाज इस्तिस्का, इस्तिस्का, इस्तिस्ना, ना नहीं, हाँ बिल्कुल सही, तालियां बजाइए। और एक मैं बता दूं कि नमाज इस्तिस्का की आम नमाज में हम दुआ करते हैं तो हाथ हमारे यूं आसमान की तरफ उठे हुए होते हैं। नमाज इस्तिस्का में मैंने किताबों में पढ़ा था कि हाथ जमीन की तरफ होते हैं। अब उलमा बैठे हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं तो सर हिला दे के नहीं, जरूरी मैं ठीक हूं जी, उन्होंने सर हिला दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। आगे नमाज इस्तिस्का जी, आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है मट्टी, आसानी, पाकी, बहुत आसान, बदल। बहुत आसान। जी नेमत नहीं बजाया, बजर दबाया है सबसे पहले नेमत ने, जी हाँ। तयम्मुम, क्या? तयम्मुम, ओ भाई तलफ़ुज़ तो सही कर। मैं अभी इधर मौलाना को एक मीर का शेर याद आ गया था कि वुजू को मांग कर पानी न कर खजिल है मीर, वो मुफलिसी है तयम्मुम में घर में खाक नहीं। क्या तयम्मुम जी, क्या बात। तयम्मुम को घर में खाक नहीं। आपने पहले ये शेर मीर का कम सुना होगा। वो मुफलिसी है कि घर में खाक नहीं, वो वाली बात। नेमत को कितने नंबर दे दिए आपने? जी नेमत के 10 पॉइंट्स हुए। और अगला विजुअल देखते हैं स्क्रीन पर, क्या है दिखाइए जी। जी साहब, ऐलान, मस्जिद, इबादत, हुक्म। बरकत ने दबाया है जी पहले। बरकत, बस जी बरकत। बोलिए, कुछ और बोलिए। ऐलान का किस चीज का होता है, किस तरह से होती है? जिहाद। ऐलान नहीं, मस्जिद, हुक्म, इबादत। नमाज जनाजा। अरे आजान, बिल्कुल सही, आजान। अल्लाह अकबर, कहां से लाए हैं? आगे चलिए जी, अगले 4 इशारे देखते हैं क्या हैं। ये आजान माशाल्लाह माशाल्लाह। और हजरत बिलाल अगले 4 इशारे। अच्छा जी, अगले 4 इशारे हैं मासूम, पैगाम, बशर, इंसानियत। क्या बात है, बहुत आसान।
रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भी और तमाम अंबिया भी, बिल्कुल सही। तमाम अंबिया पैगाम लेकर आते हैं इंसानियत के लिए और बशर होते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन हमारे सेगमेंट का, आखिरी सवाल, आइए। जंग, तकसीम, माल, मुजाहिद। माले गनीमत। बिल्कुल सही। फाइनल स्कोर की तरफ चलें? कहाँ जी? फाइनल स्कोर की तरफ रहेंगे हम यही, मैं अच्छा, लेकिन हमारा कैमरा जाएगा जो final score। हुक्म सरकार। ठीक है जी, फाइनल स्कोर दिखाइए स्क्रीन पर। इस सेगमेंट के 10 बरकत के हैं, नेमत के हैं कितने जी? 30 और रहमत के भी 30। तालियां बजाइए इनके लिए। फाइनल स्कोर स्क्रीन पर देखते हैं क्या है, दिखाइए जी स्क्रीन पर। और विनर टीम है नेमत। बहुत सी तालियां। 70 पॉइंट्स नेमत के, बरकत के 25 और रहमत 45। रहमत और बरकत आप जा सकते हैं अपनी सीट्स पर। ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे। आप इधर आ जाइए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप जीती क्या है। इनके लिए बहुत सी तालियां बजाइए। नूर रमजान की बाइक, सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन, एनवायरो का मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसर, एनएक्स का फुट मसाजर, एनवायरो जूस एक्सट्रैक्टर, हाशमीज पे गोल्ड का गिफ्ट हैम्पर, एनएक्स का जूसर ब्लेंडर। सर एक चीज है सिर्फ, आप जरा इधर आइए। सर इधर आइए। ये सारी चीजें तो ये जीत गए हैं जी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे हैं सर पे हाथ फेर दें। जी जीती रहे। सर ये देखिए तारिक साहब कि हमारे पास गाड़ी मौजूद है। अगर 5 सवाल ये जवाब दे दें 5 सवालों को, तो हबीब ऑयल की कार ये ले जा सकती हैं। ये चीजें इनको अभी छोड़नी पड़ेंगी और गाड़ी के लिए खेलना पड़ेगा। अगर हमने ये गाड़ी के लिए माइक जी, गाड़ी के लिए विन नहीं कर सके तो हमें ये नहीं मिलेंगी चीजें। आप ये तो नहीं मिले, हर चीज तो नहीं मिल सकती। उधर देखिए, सामने देखिए। हाँ। जी आप क्या कहती हैं? आई गेस कर लेते हैं, लेकिन फिर ये है कि 4 क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन नहीं आया तो फिर तो गाड़ी अगर गई। गाड़ी के लिए हम सब कुछ छोड़ेंगे आप, सब कुछ छोड़ेंगे। अगर गाड़ी के लिए खेलेंगे। नहीं, गाड़ी भी विन नहीं की तो हमें ये भी नहीं मिलेगा। जाहिर है ये कैसे मिलेगा? ये चाहते हैं हर चीज ले जाए यहाँ नहीं से। ना, ना। सर मैं कह रही हूँ गाड़ी मिल गई तो हम नहीं, गाड़ी नहीं मिली तो ये भी नहीं मिलेगा। माइक में बोले क्या? नहीं मिलेगा। मिली तो ये भी आपको नहीं ये मिलेगा। छोड़ना पड़ेगा तो गाड़ी की तरफ चलेंगे आगे। नहीं, वी आर हैप्पी विद इट। हम अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बरकत, हम खाली हाथ आए थे, अल्लाह ने इतना भिजवा दिया, यही बहुत है। नेमत। अल्लाह नेमत दे रहा है, गाड़ी की ले जाओ। आज हबीब ऑयल की कार खड़ी है, ले जाओ, खुदा का वास्ता ले जाओ। नहीं, क्वेश्चंस नहीं आया तो क्वेश्चंस 5 हैं। नहीं 5 आया, क्वेश्चन आंसर नहीं आया तो फिर तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जो अभी हो रहा था वही होगा। बोले जल्दी। नहीं तो फिर खाली हाथ जाएंगे। आज घर इधर वाले देखिए, इधर देखिए, खाली सामने। हाथ जाएंगे फिर अच्छा नहीं घर वाले लगेगा। बैठे हैं सामने। नहीं, घर घर वाले देख वो रहे हैं। बेचारियां, उनकी तो टांगे कांप रही हैं वैसे ही। तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में भी फैसला इनसे पूछेंगे कि क्या चाहती है, खेलना चाहती है नहीं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूर रमजान। खुशामदीद कहते हैं आपको। और हबीब ऑयल की गाड़ी आज लेकर जाएगी ये टीम। तारिक साहब सवालात आपके पास है। बस ही मैंने अब ख़वातीन व हज़रात, ये 2 बच्चियां जिन्होंने पहले मुकाबले में ये इनामात जीते, ये मोटरसाइकिल, ये फ्रिज, वॉशिंग और मशीन है। ये जितनी भी चीजें हैं ये जीत चुकी हैं। अब हमारी एक शर्त है कि हबीब ऑयल की भेजी हुई कार, ये पीछे आपको नजर आ रही है, चाबी मेरे हाथ में है। अगर ये अपनी खुशी से ये सामान छोड़ देती हैं, ये मोटरसाइकिल और ये दूसरी सारी चीजें, तो ये गाड़ी के मरहले में दाखिल हो सकती हैं। इन्होंने बड़ा मशवरा किया, एक दूसरे के कान में मुंह डाल के हो जाए, ना कर, ये कर, वो कर। आखिर इन्होंने फैसला किया कि जो हो सो हो, हम गाड़ी का खेल खेलेंगे। चाबी जरा आप ले लें। मेरी दिली दुआ है कि ये बच्चियां कार जीत लें, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयदा सबीन कलीम। आपका? सैयदा हफ्सा। किस क्लास में हैं आप? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। और मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर। यूनिवर्सिटी।
जिसको फर्स्ट ईयर फूल कहते हैं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसको फूल नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं। स्टडिंग बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओए होए होए, इतना रोब ना मुझ पे डालें। लीजिए जी, आप सब खामोश, और जब अगर जवाब दुरुस्त हो तो भरपूर तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिएगा जी। तैयार? जी, अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार देख लें, ये आपके पीछे खड़ी है। ये सामान आपने छोड़ा है अपनी खुशी से, हमने आपसे नहीं कहा। अगर आप कार ना जीत सकी तो ये भी ये तो गया ना, ये तो आप छोड़ चुकी। उसके बाद हमारे फैसले हैं जो भी हम करें। बिस्मिल्लाह करें। तैयार है? बिस्मिल्लाह। रेडी हैं? चलिए जी, शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो फरिश्ते विलादत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत लेकर आए थे, उनकी तवाज़ो के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या चीज पेश की? इंतहाई आसान, इंतहाई आसान। दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्या जी? रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जो फरिश्ते। अच्छा, ध्यान से सुने और इधर उधर न देखें, अपने दिमाग पर इधर मेरी तरफ देखें। जो फरिश्ते विलादत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत लेकर आए थे, उनकी तवाज़ो के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या चीज पेश की? जोश। जोश क्या? गोश्त। मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आप गोश्त। गोश्त। इधर आ जाइए। गोश्त। गोश्त पेश किया था? किस किस्म का गोश्त पेश इधर किया आ था? जाइए। हाँ जी, किस चीज का गोश्त था, क्या था? विलादत पर उनकी दावत की थी उन्होंने, क्या था? ऊंट का गोश्त। उधर ना देखें, वहां से मदद नहीं मिल सकती। नहीं, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा, ये हक मेरे पास है। आप उधर देख रही हैं। पढ़ा है वहां तक ये है कि गोश्त था, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा कि गोश्त गाय का था, बकरी का था, ये नहीं याद आ रहा मुझे कि गाय का था, बकरी किसी का था। जानवर का था, किसी परिंदे का था। दुम्बे हाँ जी, अल्लामा साहब क्या कहा आपने? दुम्बे का गोश्त। दुम्बे का गोश्त था। दुम्बे का गोश्त। गोश्त था ही मैंने पढ़ा। गोश्त खाने से मतलब है, अब ये क्या करना, किसका है, क्या है। अच्छा, कुछ जगहों पे दुम्बे का गोश्त कहते हैं और कुछ जगहों पे बछड़े का गोश्त भी कहा गया है, ऐसा ही है सर? बछड़े का गोश्त था जी वो। जवाब दुरुस्त माने? और जवाब ये 50% दुरुस्त माने? मान ले। गाड़ी का टायर चला गया, 4 टायर चले गए आपके पास। आइए जी, अगला सवाल। अच्छा, एक बात मेरी सुन लें जी, उधर देखना, सवाल मैं कर रहा हूं, आप उधर से मत ना। स्क्रीन पर आप क्या देख रही? सोचना आपने ज़हन से है। इस्लामी कानून का दूसरा माखज कौन सा है? पहला माखज तो स्क्रीन पर। माइक बोलिएगा। पहला तो इस्लामी कुरान कानून पाक है, सब का जानते हैं। दूसरा माखज कौन सा है? बोलिए। सुन्नत नबवी। हदीस। हदीस नबवी। पहला माखज कौन सा है? सुन्नत है, पहला हदीस है। पहला कुरान पाक है, दूसरा हदीस। इस्लामी कवानीन का पहला माखज है कुरान मजीद फुरकान हमीद, और दूसरा माखज है हदीस से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 सवाल आपके दुरुस्त हुए। उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक कहां है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। क्या बात है, क्या बात है।
पहला सवाल थोड़ा इनका तुक्का था, बाकी दो तो उन्होंने बिल्कुल आला किस्म के दिए। अब अगले सवाल हैं दोनों मुश्किल। मैं आपको एक चांस, मैं आपको मेरी बात सुने, इनकी सुन ले जो मैं कह रहा हूं पहले वो सुन लें, फैसला मैंने करना है। अभी भी मैं आपको चांस दे रहा हूं कि छोड़े सारे झगड़े, अपना सामान उठाएं और घर जाएं। अगर नहीं तो फिर सवाल जरा मुश्किल है। मेरा काम है कि आपको रास्ते की ठोकरों का बताता जाऊं कि अब आगे मुश्किल है। एक क्वेश्चन रह गया ना? हैं जी, दो क्वेश्चन हैं जी। जब 3 दे दिए तो इंशाल्लाह आगे दो भी नहीं है सर। हुआ ये था कि हमने अनाउंस कर दिया था जब ये खेलना नहीं चाह रही थी, तो इन्होंने कहा आप 3 सवाल कर लें। हम 5 करना चाहते हैं, हमने कहा हम 4 करेंगे, और अगर 4 के जवाब सही होगी तो गाड़ी इनकी हो जाएगी। तो अब हमारे पास 2 सवाल हैं। 4 का मतलब है कि अगर 1 का जवाब नहीं आया तो हम फिर 5वां करेंगे इनसे, और उन दोनों में से आप 1 सवाल कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर इसका जवाब इन्होंने दे दिया तो ठीक है, वरना फिर ऊपर नहीं आया सर, आप पढ़ेंगे। अच्छा जी, और इसके लिए आपके पास 15 सेकंड है जवाब देने के लिए। इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। यार तालियां बजा दो उनके लिए थोड़ी सी प्लीज। आपस में मशवरा करें, जहन पर जोर दें ताकि आपकी यादाश्त आ जाए। आप इधर जो आदमी तो आधा पागल हो जाता है इनको देखकर। किताबुल आसार किताब का नाम है। इसके मुअल्लिफ कौन है, लिखने वाले कौन हैं? किताबुल आसार। उधर ना देखें, उधर ना देखें। बहुत आसान। ये अपना मौलाना मौदूदी? नहीं, इतना आसान है इसका, तो इतना आसान जवाब है। ऑडियंस में से हाथ उठा रहे हैं लोग। नहीं, उधर ना पूछे। आप मौलाना मौदूदी कह चुकी। अब्बुल हनीफ। जवाब गलत है जी। अब्बुल हनीफ। जवाब गलत है जी। अब्बू हनीफ। पहला जवाब आपका गलत हुआ। देखें, चांस दे दें प्लीज। यहाँ मैंने 3 के दिए, प्लीज प्लीज ना करें ये। मुझे क्या पता है Please. कि ये जो कुछ हो रहा है वो Please. मुझे ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। आप उधर क्यों देखती हैं? उधर क्या है? उधर क्या है ये बताएं। सवाल करने वाला मैं खड़ा हूँ। आपने अगर शोर आता है हिम्मत सर, चांस करनी, शोर आता है, आवाजें आती है इसलिए, वरना मुझे मेरी तैयारी है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा मैं सा इधर हो कंफ्यूज हो जाए, जाती हूँ। थोड़े से इधर हो जाए। वो उधर से मुझे पता है आवाज आ रही है। मुझे पता है जो कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बस मैं यही कह सकता हूं। आवाज नहीं आ रही चाहिए। किताबुल आसार के मुअल्लिफ कौन हैं? अबू हनीफ। अबू हनीफ। अबू हनीफ, हजरत अबू हनीफ। ये जो शख्सियात हैं, इनका प्रोटोकॉल होता रहमतुल्लाह है अलैह। जब इनका नाम लिया जाए, इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह लें या रहमतुल्लाह अलैह कह लें। जरा कंफ्यूज हो रही हूँ टाइम। इस पर आप कायम हैं? जी मौलाना मौदूदी आपने छोड़ दिया? जी जी। ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा था ना कि ये सही है या सामान ले गलत? जाएं। ये और जवाब सही था या गलत बयान था? में मैंने रास्ते की रुकावटों का आपको बताया था। फिर सोच लें कि जवाब कोई और तो नहीं। बस मैंने पढ़ा था, मेरे जहन में आ रहा है। आपने जो कुछ पढ़ा आज तक आपके जहन में नहीं आ रहा आ रहा है, जहन में यही आ रहा है। घर में आलू तो की नहीं टेंशन- पकाती रहती तो हैं। टेंशन है हाउस इतना। वाइफ है ना? जी जी। बस फिर वो आलू करेले पकाती रहती हैं। मास्को में मास्टर्स भी किया हुआ है इन्होंने। काहे में किया हुआ है? मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स भी किया आफ्टर मैरिड। नहीं, मुझ पर रोब ना डालें, जवाब आपका दुरुस्त है। इन्होंने कहा था हजरत अबू हनीफ कहा आपने, तो इमाम का लफ्ज साथ नहीं लगाया। इमाम अबू हनीफा या इमाम अबू हनीफा जो हैं उनके बारे में उनकी किताब लिखी हुई है ये, तो इमाम लगाना बहुत जरूरी है।
आखिरी सवाल कर लें, एक सवाल और कर लें जी। जी क्या क्या कह रहे हैं? 4 हो गए। क्या हो गया? जो बोल रहे हैं क्या हुआ? माइक्रोफोन में। 4 हो गए एहसन भाई, 4 हो गए, 4 का वादा किया था। अच्छा ठहरिए जी, इस पकड़े, ये कहते हैं 4 हो गए होंगे। मिर्जा गालिब का कोई शेर सुनाए। मिर्जा गालिब का शेर इतना आसान सवाल है, पांचवा तो। एक मिनट। जल्दी जल्दी, शाबाश। मिर्जा गालिब का 1 मिनट। अब देखें उधर। नहीं मुझे आता है, दिमाग नहीं काम कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का सुना दूं? मीर का कोई शेर सुनाए। अल्लाह कोई दिमाग नहीं काम कर, खुशी में दिमाग नहीं काम कर रहा हूँ। दर्द का कोई शेर सुनाए। मेरा दिमाग नहीं, मैं अल्लामा इकबाल का सुना दूं? हुर्फे तसल्ली तो एक तकल्लुफ है मीर, जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। क्या? जिसका दर्द। शेर को शेर की तरह पढ़े, डॉक्टर का नुस्खा न बनाए। क्या था? हुर्फे तसल्ली तो एक तकल्लुफ है मीर। हुल्फे हुर्फे तसल्ली एक तकल्लुफ है मीर। ओए, हर्फ हरफे, सुना। सॉरी देखो ना, हरफे तसल्ली तो एक हुल्फे है। अब हुल्फे बरबस कुल्फे। आराम से बोलो, आराम से। कुल्फे। ये कोई बात है? मेरी प्रोनाउंसिएशन वीक है। आराम से पढ़ो, आराम। टेंशन में आप दोनों क्यों है इतनी? क्या हो हरफे गया? तसल्ली तो एक तकल्लुफ है मीर, जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। बाकी सब तमाशा है। तमाशाई। तमाशाई। अल्लामा इकबाल का कोई शेर जी। खुद ही को कर बुलंद वो इतना। मैं मर गया, अच्छा। रहने दे। दूसरी जमात से पढ़ने। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं गुजारिश कर दूं कि ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है। ये सियालकोट के एक वकील थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल के रंग में कहने की कोशिश की, लेकिन ये शेर अल्लामा का नहीं है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के। हम दुआवां ते आ गई ने। प्लीज देखे हो गए ना क्वेश्चन चाचा का शेर सुनाओ, वो अच्छा सा। वो तो है, प्लीज माफी मांग रही है। हम आपके बयान पे नहीं होता सर, आप वो बहुत काबिल इंसान है, हम तो आपके खाक हैं कार बिल्कुल। कार चलानी आती है? मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को आती है। आपको आती है? अब इसको, आप दोनों बहनें हैं, सहेलियां हैं? बहनें हैं, हम दोनों सिस्टर्स हैं। बहनें हैं हम दोनों। वरना इसको आधी आधी कर देते हैं जी। इसकी हो गई, बड़ी बहन है, इसकी हो गई मेरी तरफ से। वादे वईद भी यही हो रहे हैं। बहरहाल अब आप हबीब ऑयल की भेजी हुई कार, ये सुर्ख रंग की खूबसूरत कार, जरा देख तो ले उसे, इस पे हाथ फेर के देख ले। हाँ, ये अब हमारी नहीं है, ये अब आपकी है। और अल्लाह तेरा चल बेटा, बस ठीक है। चल बेटा, शाबाश। रो रही है, बहुत रो रही है खुशी से। चलो बस बस इट बस, वॉज अनएक्सपेक्टेड, बच्चे, बस। सीरियसली। बस बस, शाबाश। ये देखो ना, ये अल्लाह का शुक्र तो खैर अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए। और आज घर में बड़े इधर होइएगा, पकौड़े पकौड़े। साइड पे। आपने जितनी बच्चियों ने मेहनत की है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। आप जैसी शख्सियत इनके सामने है, तो इनके मुंह से अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही नहीं हो रहा था। वो इम्तिहान तो फिर इसी का नाम है ना जी। चले जी, बहुत सी तालियां बजा दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। खुशी के आंसू हैं, बहुत